इस एपिसोड में मैं बात करना चाहता हूं कालसर्प योग के बारे में। कालसर्प योग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ये पूरी तरह से विराजमान है, लेकिन इसको एलिमेंट्री तौर पे हमें समझना होगा। कालसर्प योग है क्या? जब भी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी स्थान में ग्रहों की यूनियन बनती है तो ऐसी स्थिति को योग कहा जाता है। जब भी हॉरोस्कोप के अंदर एक से ज्यादा ग्रह दृष्टि संबंध से या एक ही घर में विराजमान हो तो ऐसी यूनियन को योग कहा जाता है। जो इंपॉर्टेंस हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम की है, डिजीज की है, रोग की है, वही इंपॉर्टेंस हॉरोस्कोप के अंदर, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर योग की है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। जब सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य अवस्थित हों, एक ही तरफ की स्थिति में हो, सभी ग्रह राहु और केतु के अंदर आ जाएं, बाहर कोई ग्रह निकल ना पाए, तो ग्रहों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। ऐसी स्थिति को कालसर्प योग कहते हैं। काल यानी मृत्यु। काल का मतलब है मृत्यु। राहु का अधिदेवता काल है। राहु केतु छाया ग्रह है। इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, शैडो प्लैनेट है। राहु केतु जिस तरह इलेक्ट्रिक चार्ज है, मैग्नेटिक चार्ज है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, इनका इफेक्ट तो है, लेकिन इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। राहु और केतु represent two nodes of the moon. It represent the basic bipolar nature of the man. They actually do not exist as a material entities. राहु केतु की कोई सब्सटेंस नहीं है, मटेरियल में नहीं है, मास में नहीं है, लाइक अदर 7 प्लैनेट्स, जिस तरह सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। ये एक मास के अंदर है। इनका डायमीटर हमें पता है, लेकिन राहु का, केतु का कोई मास नहीं है, कोई डायमीटर नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, लाइक अदर 7 planets. But they each of them represent a point where plan of the moon's orbit around our planets intersect with the plane of ecliptic of the zodiac constellation. These nodes are quite important to any astrologer, astronomers, numerologist, or somebody who study numerology, because they belong to the moon, whose influence on our human being, on man race, on human race, is the enormous impact on us. Because moon का इफेक्ट इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा है। धरती के सबसे नजदीकी ग्रह मून है। मून रिप्रेजेंट ह्यूमन इमोशंस, लाइफ स्पैन, विजन, इमेजिनेशन, health, happiness, creativity, activity. And moon is quite important. Moon represent our vision. Moon represent our mind. Moon represent our health, mentally and physically. It is only at the nodes that our path of the moon intersects the path of the other planets. These nodes are not fixed. These nodes are not fixed points in a outer space, but they are more backward. That is, they are always retrograde, never direct, because in ancient times, with the help of other nodes, exact dates of the solar or lunar eclipses we can find out could be determined by astrologer or astronomers. Each one of these given status of the half planet. Rahu, the north node of the moon, is an active and disruptive force which works mainly on the mental level.
not on the physical level. It is supposed to be malefic planet. Rahu is supposed to be very dynamic in nature, low in vibrations, hedonistic, eternally dissatisfied. It makes its natives very lazy, lethargic, dull, illogical, player-seeking person, revolutionary, conspirators, spies, detectives. Rahu brings to its native confusion, ignorance, arrogance, phobias, enmity, bad karma. Rahu is a great energy force. Rahu is also known as a dragon's head. Rahu and Ketu are the two half planets placed 180 degrees apart from each other, exactly opposite to each other. Ketu is the south node of the moon. We call it dragon's tail. Native rules by Ketu are always talkative, love fantasies, fantasy life, very imaginative, love to exaggerate, very, very restless, thoughtful, artistic in nature. राहु का जन्म भरणी नक्षत्र और केतु का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में है। राहु के जन्म नक्षत्र भरणी की डायटी देवता काल है। केतु के जन्म नक्षत्र अश्लेषा की डायटी देवता स्नेक है, सर्प है। राहु केतु के नक्षत्र देवताओं के नामों को जोड़ के काल सर्प योग कहा जाता है, क्योंकि राहु का जन्म भरणी नक्षत्र है और केतु का जन्म अश्लेषा नक्षत्र है। राहु के जन्म नक्षत्र भरणी का डायटी यानी देवता काल है। केतु के जन्म नक्षत्र अश्लेषा के डायटी देवता स्नेक है, सर्प है। इसी वजह से राहु और केतु के नक्षत्र देवताओं के नामों को जोड़ के काल सर्प योग कहा जाता है। राहु के गुण अवगुण शनि के समान है। केतु के गुण और अवगुण मंगल के समान है। राहु जेमिनी में उच्च है, सजिटेरियस में नीच है, वर्गों में स्वग्रही कहलाते हैं। केतु सजिटेरियस में उच्च है, जेमिनी में नीच है, पाइसेस में सब स्वग्रही कहलाते हैं। पाइसेस में स्वग्रही कहलाते हैं। अब बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिसफॉर्चून। जिनकी कुंडली के अंदर काल सर्प योग घटित होता है, उनको लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। डिजायर्स और ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाते, एक्सपेक्टेशंस और रिजल्ट मैच नहीं करते, नेम फेम रिकॉग्निशन एप्रिसिएशन नहीं मिलते, हार्मोनी हैप्पीनेस नहीं होती, मेंटली फिजिकली इशू बने रहते हैं, फ्लो ऑफ इनकम, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर, वर्क रिलेटेड इश्यूज चलते रहते हैं, लॉट्स ऑफ डेट्स, लॉट्स ऑफ अनसिक्योरिटी बनी रहती है। मिसफॉर्चून भी 4 तरह के होते हैं। दुर्भाग्य मिसफॉर्चून 4 टाइप्स के हैं, जिनको जिंदगी में हमें झेलना पड़ता है। अलग अलग लोगों के मिसफॉर्चून भी अलग अलग तरह के हैं। पहला मिसफॉर्चून बच्चे का ना पैदा होना, औलाद का ना होना, बच्चों का ना होना। दूसरा मिसफॉर्चून आउट ऑफ कैरेक्टर होना, मैड एज हेल होना, या पार्टनर का होना लेकिन पार्टनर का आउट ऑफ कैरेक्टर होना, पार्टनर का मैड एज हेल होना। जीवन साथी है लेकिन उसका कैरेक्टर समझ में नहीं आता। जीवन साथी हैं, उनके साथ रहना नरक के समान है। तीसरा मिसफॉर्चून जिंदगी के अंदर जो घटित होता है लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी पैसे को तरसना, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपका पास पैसे का ना होना,
सारी जिंदगी काम करने के बाद भी आपके पास रोजी रोटी के लाले पड़े हों और गुजारे लायक पैसे ना हो और कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी ना होना और हमेशा बहुत डेस्परेट रहना पैसे के लिए। फोर्थ एलिमेंट जो काल सर्प की ओर से दुर्भाग्य दिया जाता है लोगों को, मेंटली फिजिकली हेल्थ का ठीक ना होना। मेंटली बीमार हैं, फिजिकली ठीक नहीं है, बहुत डिप्रेस्ड है, ड्रीम वर्ल्ड में है, डाउन फील करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बहुत सैड है, बहुत डिसअपॉइंटेड है, बहुत फेड अप है, एमलेस लाइफ है, फोकस नहीं है, बहुत रेस्टलेस है, फिजिकली एनर्जी नहीं है, लैक ऑफ एनर्जी है, लैक ऑफ ड्राइव है, लैक ऑफ इमोशंस है। इस तरह के हालात, जो दुर्भाग्य 4 तरह के हैं, वो चारों प्रकार के दुर्भाग्य जिनकी कुंडली के अंदर काल सर्प हो उनके साथ घट जाना होता है। इनमें से 2 तरह के, 3 तरह के दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून या 4 टाइप्स के मिसफॉर्चून जिनकी कुंडली के अंदर काल सर्प योग होता है, 1 बाय 1 या 1 या 2 या 3 या 4 तरह के ऐसे मिसफॉर्चून लोगों की जिंदगी में घट जाते हैं। दुर्भाग्य मिसफॉर्चून के चारों लक्षण काल सर्प योग में नजर आते हैं। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प हो उनके ये चारों लक्षण जो दुर्भाग्य के, मिसफॉर्चून के हैं, उनके 1 बाय 1 अलग अलग तरह के दुर्भाग्य काल सर्प योग लोगों की, काल सर्प योग वालों कुंडलियों के अंदर नजर आते हैं। यही पिछले कई सालों से ज्योतिष शास्त्र का एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने ये लोगों की ज़िंदगी में देखा है। मैंने ऐसे कम से कम 12,500 केसेस स्टडी किए जिनकी कुंडली के अंदर काल सर्प योग घटित हो रहे थे। तो ऐसे 4 प्रकार के दुर्भाग्य एक या दूसरे रूप में जन्म कुंडली के अंदर घटित हो रहे थे। काल सर्प योग अपने शुभ योग को मिनिमाइज कर देते हैं। जिनकी कुंडली के अंदर काल सर्प योग होता है, उस जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प योग अपने शुभ योगों को मिनिमाइज कर देते हैं। राजयोग के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। राजयोग के इफेक्ट को राजयोग भंग बना देते हैं। काल सर्प योग का होना, काल सर्प योग जन्म कुंडली के अंदर घटित होने का मतलब है यू आर ड्राइविंग ए कार विद ए हैंड ब्रेक ऑन। अगर जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प योग घटित है तो उसका मतलब है आप गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन उस गाड़ी की हैंड ब्रेक ऑन है। अगर आप काल सर्प योग को डील नहीं करते, बाकी सब कुछ कर देते हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, रिंग्स पहन रहे हैं, तो भी इन सब का अच्छा इफेक्ट आपको उस तरह से नहीं मिलता जिस तरह से मिलना चाहिए। हमारी लक की राइज के लिए राहु और केतु का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। राहु को 18th ईयर और केतु को 7 इयर्स विष्टोत्तरी दशा में दिए गए हैं। राहु को विष्टोत्तरी दशा में अब 18 साल राहु को डेडिकेट किए गए हैं और केतु को 7 इयर्स दिए गए हैं। इसकी वजह से ज्योतिष शास्त्र के अंदर राहु और केतु की अपने आप में इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा दी गई है। दोनों की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रिक चार्ज जन्म कुंडली में होना, इसके इम्पैक्ट लाइफ के अंदर बहुत लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। 2 तमोगुनी एवं पाप ग्रहों के बीच अटके हुए समस्त ग्रहों की स्थिति अशुभ रहती है। जब राहु और केतु के बीच सभी ग्रह अटक जाते हैं तो उनकी फ्रीडम, उनका उस तरह से इफेक्ट देना, वो बात नहीं रहती जैसी होनी चाहिए। काल सर्प योग के परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों के हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं। लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, फाइनेंशियल सेटबैक्स बनते रहते हैं,
प्रोफेशनल सेटबैक्स को डील करना पड़ता है। कालसर्प योग अपने आप में दुर्भाग्य योग है। नक्षत्र पद्धति के अनुसार यदि राहु और केतु के साथ रहने वाला ग्रह एक ही नक्षत्र में हो तो परिणामों की तीव्रता कम हो जाती है। कालसर्प का इफेक्ट राहु की दशा, राहु की अंतर्दशा, राहु की प्रत्यंतर दशा में बहुत मिलता है। कालसर्प का इफेक्ट केतु की दशा, केतु की अंतर्दशा, केतु की प्रत्यंतर दशा में बहुत मिलता है। कालसर्प का इफेक्ट तब भी मिलता है जब राहु गोचरवश अशुभ चलता है, जब ट्रांजिट में राहु अशुभ चलता है, जब गोचर में कालसर्प योग की सुदृष्टि होती है, जब गोचर में कालसर्प योग की सृष्टि होती है, जब गोचर में कालसर्प योग बन जाता है, तब भी राहु का नेगेटिव इफेक्ट चलता रहता है। कालसर्प योग का इफेक्ट और भी ज्यादा नेगेटिव होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है जब राहु केतु की यूनियन और ग्रहों के साथ हो जाती है। कई बार कुछ ज्योतिष के शास्त्री इसको ऐसा नहीं मानते। जब राहु केतु के साथ को ग्रह आ जाए, कुछ ज्योतिष आचार्यों का ये मानना है कि कालसर्प योग भंग हो गया, लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं होता। कालसर्प के साथ राहु केतु के साथ और ग्रहों की यूनियन का हो जाना, अगर कालसर्प योग भी घटित हो और राहु केतु के साथ सूर्य और चंद्रमा भी हो जाए तो इसका इफेक्ट और एक्सट्रीम होगा। अब राहु केतु के साथ कालसर्प योग भी घटित हो रहा है जन्म कुंडली में और राहु केतु के साथ मंगल और शनि भी आ गए हैं, तो इसका इफेक्ट और भी एक्सट्रीम होगा। ये नहीं होगा कि एक ग्रह राहु के साथ आ जाए या केतु के साथ आ जाए तो हम कहें जी कालसर्प योग भंग हो गया, ग्रह बाहर आ गया, ऐसा नहीं माना जाएगा। राहु केतु के साथ शुक्र विराजमान हो जाए, इफेक्ट और भी एक्सट्रीम होगा। शुक्र के अपने अच्छे इफेक्ट को खत्म कर देगा। राहु केतु की यूनियन सूर्य के साथ ग्रहण योग बनाती है। कई लोग केतु के साथ सूर्य के साथ केतु और सूर्य के यूनियन को अर्ध ग्रहण मानते हैं, पर ऐसा नहीं होता। इसको पूर्ण रूप पे ग्रहण मानना चाहिए। राहु केतु की यूनियन चंद्रमा के साथ चंद्र ग्रहण योग बनाती है। राहु केतु की यूनियन मंगल के साथ अंगारक योग बनाती है। राहु की यूनियन बुध के साथ जड़तव योग बनाती है। राहु की यूनियन बृहस्पति के साथ चंडाल योग बनाती है। राहु की यूनियन वीनस के साथ अभोतत्व योग बनाती है। अभोत्वक योग बनाती है। राहु की यूनियन शनि के साथ नंदी योग बनाती है। तो कोई भी ग्रह जब राहु के साथ जुड़ जाएगा तो राहु के एक्सट्रीम बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे राहु और सूर्य की यूनियन, राहु एंड सन। सूर्य ग्रहण योग बनता है। कुंडली में सूर्य ग्रहण बना नजर आएगा। जब राहु और सूर्य इकट्ठे होंगे, जन्म कुंडली सूर्य ग्रहण से ग्रसित होगी, सूर्य ग्रहण योग बनाएगी। इसका पूर्ण नेगेटिव इफेक्ट स्टेटस पे, प्रेस्टीज पे, नेम, फेम, बिजनेस, प्रोफेशन पे पड़ता है। राहु और सूर्य और राहु जब जिस घर में बैठेंगे, ये उस घर के फल को भी खराब करेंगे। जिस घर को देखेंगे अपने घर से सप्तम भाव के फल को भी खराब करेंगे और अपने जिस घर में राहु और सूर्य बैठेंगे उसके अगले वाले घर को भी, यानी सेकंड हाउस को भी, उसके इफेक्ट को भी स्पॉइल करेंगे। राहु और सूर्य जिस जगह बैठेंगे ये तीन घरों के अच्छे फल को नष्ट कर डालते हैं। जिस घर में बैठेंगे उस घर का इफेक्ट, जिस घर को देखेंगे सामने वाला उस घर के फल को नष्ट करेंगे और अपने नेक्स्ट हाउस, सेकंड हाउस के फल को भी खराब कर डाल देते हैं। राहु और सूर्य का इकट्ठा होना, इसका मतलब है लीगल प्रॉब्लम्स का होना, कॉम्प्लिकेशंस को डील करना पड़ेगा, लीगल इश्यूज बहुत होंगे, फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी, डिसअपॉइंटमेंट बहुत होगी, लिविंग लाइफ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट का होना, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स का होना, बहुत वक्त तक
जिंदगी में स्ट्रगल का होना, ऑब्स्टेकल्स आफ्टर ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंसेस आफ्टर हिंड्रेंसेस, सिचुएशंस कई बार बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती है। राहु और सूर्य, सूर्य और राहु ग्रहण योग है, सूर्य ग्रहण योग है। अब बात करेंगे राहु और चंद्रमा, राहु और मून। राहु और मून की यूनियन चंद्र ग्रहण योग बनाती है। इसका पूरा नेगेटिव इफेक्ट मेंटल स्टेबिलिटी को खराब करने में हो जाता है। डिप्रेशन का होना, फ्रस्ट्रेशन का होना, डिसअपॉइंटमेंट का होना, मेंटली तौर पे अनस्टेबल होना, फैमिली रिलेशनशिप का खराब होना, सीक्रेट टेंशंस का होना, हेल्थ इश्यूज का होना। लाइफ कैन बी ए लिविंग कॉन्फ्लिक्ट, क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ना होना, रियलिटी से जिंदगी बहुत दूर तक विमुख हो जाना। चंद्र ग्रहण मति भ्रम हो जाती है, यानी आपकी जो मत है, आपकी जो कॉमन सेंस है, उसके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है, उसके अंदर एक इल्यूजन पैदा हो जाता है, आपकी सोच के अंदर एक वैक्यूम आ जाता है। लाइफ कैन बी ए लिविंग कॉन्फ्लिक्ट, लॉट्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड इन द पर्सनल रिलेशनशिप ड्यू टू राहु एंड मून। लॉट्स ऑफ रेस्टलेसनेस, बेचैनी बहुत होगी, फियर बहुत होगा, एंग्जाइटी बहुत होगी, अनसिक्योरिटी बहुत होगी। चंद्र ग्रहण के जो योग हैं, ये चंद्र ग्रहण के इफेक्ट लॉन्ग टर्म चलते रहते हैं। बात करेंगे राहु और मंगल की यूनियन। राहु और मंगल जब मिलते हैं तो अंगारक योग बनाती है, जिसका पूरा इफेक्ट आउट ऑफ कंट्रोल टेम्पर का होना है, जिसका पूर्ण रूप पे इफेक्ट आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर का होना है, जिसका पूर्ण रूप पे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स का होना है, हेल्थ इश्यूज का होना है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज का होना है, यूरिन और लोअर एब्डोमेन को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम का चलते रहना है, मिसहैपनिंग का होना है, फाइनेंशियल इश्यूज का होना है, इलीगल प्रैक्टिस लाइफ के अंदर उसका वजूद कायम होना है। लाइफ के अंदर वो सब बातें हो जाती हैं, कई बार उसको एक्सप्लेन करना आपके बस में नहीं होता। राहु और मरकरी, मरकरी और राहु ऐसी यूनियन जड़ तत्व योग बनाती है। इसका पूर्ण इफेक्ट नर्वस सिस्टम पे होता है, मेंटल स्टेबिलिटी पे होता है, कंफ्यूजन पे होता है। मेंटली तौर पे जब लोगों को दिमागी तौर पे बीमारियां होती हैं, मेंटली इल होना, कंफ्यूजन का होना, इल्यूजन्स का होना, नर्वस सिस्टम का वीक होना, नर्वस हो जाना बहुत ज़्यादा, इसका पूर्ण रूप पे मानसिकता के अंदर विकार पैदा होना। राहु और मरकरी की यूनियन जड़ तत्व योग जो बनता है, ये उसको पूर्ण रूप पे उसका इम्पैक्ट चलता है। बात करेंगे राहु और जुपिटर की यूनियन, चंडाल योग बनाती है। इसका पूर्ण इफेक्ट एटीट्यूड के अंदर, कंडक्ट के अंदर, डीलिंग के अंदर, फ्रस्ट्रेशन के अंदर, डिसअपॉइंटमेंट के अंदर, फाइनेंशियल लॉसेस के अंदर, हेल्थ लिंक विद एब्डोमेन, चेस्ट, हार्ट, पेरेंट्स की हेल्थ के अंदर, सीक्रेट एनिमीज के अंदर। राहु जुपिटर की यूनियन एक ऐसा एटीट्यूड आपको मिल जाता है जिसको दुनियावी तौर पे डील करना कई बार फैमिली के लिए, लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। लॉस ऑफ गोल्ड का होना, फाइनेंशियल डिसेप्शन का होना, ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस का होना, हार्ट प्रॉब्लम का होना, सांस की प्रॉब्लम का होना, अस्थमैटिक होना, इस यूनियन की क्रेडिट पे आएगा। ये यूनियन, ये सब अलामतें इंसान की जिंदगी में पैदा करती है। राहु और वीनस की यूनियन अभौतवक योग बनाती है, अभौतवक योग बनाती है, जिस अभौतवक योग बनाती है, अभौतवक योग बनाती है, जिसका पूर्ण इफेक्ट रिलेशनशिप के अंदर स्कैंडल का होना, लॉस ऑफ रेपुटेशन का होना, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्ट का होना। आप अपनी हरकतों से अपनी मैरिड लाइफ को, अपनी हरकतों से अपनी फैमिली लाइफ को तबाह करने पे तुले हुए होंगे। कई बार आपको रोका जा सकता है, कई बार आपको रोका नहीं भी जा सकता। मैरिज रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज का होना, हस्बैंड वाइफ के अंदर कंपेनियनशिप का ना होना, हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे के साथ स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करना, हस्बैंड वाइफ के साथ मैरिज का अनहेल्दी होना। राहु वीनस एक यूनियन अभौतवक योग जो बनाती है, उसका एक बहुत बड़ा रोल इस यूनियन से
आपकी जिंदगी पे घटित होता है। बात करेंगे राहु और सैटर्न। नंदी योग। नंदी योग जब बनता है जन्म कुंडली के अंदर, एटीट्यूड इश्यूज बहुत होते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड बहुत इशू होते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड विराजमान होते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स, आपकी हरकतें, आपका एटीट्यूड ही आपके विनाश का कारण बनता है। राहु जन्म कुंडली के अंदर जो चलते हैं, जैसे जैसे बाकी ग्रहों के साथ यूनियन बनाते हैं, ये दूसरे ग्रहों के साथ उनकी शुभता को नाश कर देते हैं और अपनी नेगेटिव वाइब्रेशंस को ले आते हैं। क्योंकि राहु है चार्ज, बाकी ग्रह है मास। ये उस मास के ऊपर अपना इलेक्ट्रिक चार्ज रैप करके जन्म कुंडली में बैठ जाते हैं, और मास हो बड़ा और इलेक्ट्रिक चार्ज भी हो तो वो इलेक्ट्रिक करंट उसको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये है, राहु शनि के समान है, केतु मंगल के समान है। राहु सूर्य से शत्रुता करता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा से राहु शत्रुता करते हैं, क्योंकि दोनों ने, सूर्य और चंद्रमा ने नारायण को बताया था राहु के बारे में। तो राहु सूर्य से हमेशा शत्रुता करते हैं, केतु चंद्रमा से शत्रुता करता है। राहु ग्रीड को हाईएस्ट लेवल पे ले आता है। राहु इलॉजिकल प्लैनेट है, ये इलॉजिकल फोर्स है। एरोगेंस बहुत बड़ी है, प्राउड बहुत बड़ा है, ग्रीड सबसे ज़्यादा है, और किसी भी लॉजिक को स्वीकार नहीं करते। केतु दूसरी जगह पे वैराग के समान भावना पैदा करते हैं, त्यागी हैं, वैरागी हैं। हाईएस्ट लेवल पे आपके तरह त्याग और वैराग आपकी ज़िंदगी में ले आता है। सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, सब चीज़ों से मुक्त होना चाहते हैं। अब जन्म कुंडली के अंदर जब केतु और बृहस्पति हो तो ऐसे लोग आमतौर पे त्यागी और वैरागी और संत स्वभाव के होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं। बात करेंगे राहु। राहु और केतु के डेफिनेशन के बिना ज्योतिष शास्त्र की स्टडी पूर्ण रूप में नहीं हो सकती। राहु का परिचय पौराणिक मतानुसार हिरण्यकश्यप की बहन सिंहिका, जिनका नाम था, उनका विवाह विचित्र नामक दानव के साथ हुआ था। विचित्र नामक दानव के साथ हुआ था। अब दोबारा शुरू करूंगा। राहु का परिचय पौराणिक मतानुसार हिरण्यकश्यप की सिंहिका नाम बहन का विवाह विचित्र नामक दानव के साथ हुआ था। सिंहिका के गर्भ से ही राहु का जन्म हुआ था। जो सिंहिका थी, ये जिस तरह होलिका थी, उसी की तरह ये भक्त प्रहलाद की बुआ थी। भक्त प्रहलाद की सिंहिका बुआ थी, होलिका भी बुआ थी। राहु हिरण्यकश्यप के भांजे थे। श्रीमद् भागवत के अनुसार राहु के 100 भाई और भी थे, जिनमें राहु सबसे बड़े थे। महाभारत भीष्म पर्व के अनुसार राहु ग्रह मंगलकार होता है। अन्य ग्रहों के साथ राहु को भी ब्रह्मा और इंद्र की सभा में सम्मान प्राप्त है। अन्य ग्रहों के अनुसार राहु को भी ब्रह्मा और इंद्र की सभा में सम्मान प्राप्त है। मत्स्य पुराण के अनुसार पृथ्वी की छाया भी मंगलकार होती है। राहु इसी छाया का भ्रमण करता है। राहु के बारे में ऋग्वेद के अनुसार ग्रह बनने के बाद भी राहु बैर भाव से पूर्णिमा को चंद्रमा और अमावस्या को सूर्य पर ग्रहण लगाता है। ज्योतिष के ग्रंथों का मत है कि राहु आत्मा सूर्य तथा मन चंद्रमा को ग्रस लेता है, क्योंकि सूर्य का जो एलिमेंट्री, जो आत्मा का प्लैनेट है, आत्मा सोल को रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य, और मन, चित्त, विजन, इमेजिनेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं चंद्र, मून। राहु आत्मा को और मन को ग्रसित कर लेते हैं। अनुभव में यह भी आया है कि राहु प्रवृत्ति वाले लोग
या काल सर्प दोष योग वाले लोग कभी बदला लेना नहीं भूलते, क्योंकि राहु के अंदर बदले की भावना बहुत है। और राहु इस कल युग में 5200 ग्रहण लगेंगे। पौराणिक मत अनुसार राहु की जननी मां सिंहिका थी और सिंहिका के गर्भ से एक फनीधारी भारी फन वाला नाग उत्पन्न हुआ था। यह इच्छाधारी नाग था, अर्थात यह अपने फनीधर नाग रूप को किसी रूप में परिवर्तित कर लेता था। यह प्रायः नाग रूप में ही रहता था, किंतु दैत्य कुल का होने से आवश्यकता अनुसार दैत्य रूप धारण भी कर लेता था। अमृतपान के समय जब राहु ने देखा कि नारायण मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को सारा अमृत पिला रहे थे, तो उस समय राहु देवता का रूप बनाकर सूर्य और चंद्रमा के मध्य बैठ गया। इंद्र आदि और किसी भी देवता ने राहु का परिवर्तित रूप नहीं पहचान पाए, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने राहु को पहचान लिया। लेकिन तब तक राहु अमृतपान पी चुके थे। नारायण ने मोहिनी रूप त्याग कर नारायण ने मोहिनी रूप त्याग कर वापस नारायण रूप धारण किया और सुदर्शन चक्र से राहु की सिर काटने की कोशिश की। सुदर्शन चक्र से सिर काटे जाते समय राहु ने अपने आप को नाग रूप में परिवर्तित कर लिया। उसका फण राहु और धड़ केतु हुआ। अमृत पान करके राहु देव रूप होते हुए भी फन और धड़ को छाया ग्रह में बनाने में कामयाब हो गए। अमृतपान करने से देव रूप होते हुए भी उन्होंने अपने फन और धड़ को छाया ग्रह बना दिया। अंत में ब्रह्मा जी ने राहु केतु को ग्रहों में स्थान दे दिया, क्योंकि तब तक राहु अमृतपान कर गए थे, अमर हो गए थे। तो ब्रह्मा जी ने राहु केतु को ग्रहों में स्थान देके उन्हें सम्मानित किया। लेकिन राहु डिटर्मिनेशन स्पिरिट को देता है, बहुत डिटर्मिन प्लैनेट है। समुद्र मंथन में राहु की विशेष भूमिका रही थी। इन्हीं की दूरदृष्टि और अपने अथक प्रयासों से राहु की दूरदृष्टि और अथक प्रयासों से समुद्र मंथन संभव हुआ था, क्योंकि राहु दूरदृष्टि वाले प्लैनेट है। राहु की डिटर्मिनेशन अनकंपेरेबल है, क्योंकि राहु गणित के देवता थे, मैथमेटिशियन है, इंजीनियर हैं। देव भाव में इस दृष्टि के इनको इंजीनियर का देवता देव भाव के बाद इस सृष्टि के प्रथम यंत्री, प्रथम इंजीनियर राहु ही हैं। आज भी जिनकी कुंडली में राहु उच्च का होता है, वही लोग फेमस एरोनॉटिकल इंजीनियर होते हैं। राहु पताल के भी कारक है, राहु पॉलिटिकल वर्ल्ड का भी कारक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, नंबर्स के फील्ड को लीड करते हैं। कलयुग में राहु का अपना उच्च का स्थान है। राहु और केतु नॉर्थ नोड ऑफ द मून, साउथ नोड ऑफ द मून रिस्पेक्टिवली दोनों इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। राहु नॉर्थ नोड ऑफ द मून है, केतु साउथ नोड ऑफ द मून है। ये दोनों ग्रह आपस में 6 साइंस के डिफरेंस यानी 180 डिग्री के अंतर से राहु और केतु या राहु जन्म पत्रिका में एक दूसरे से 7th हाउस पे भी रहते हैं। वक्र गति बाकी ग्रहों की अपेक्षा इनकी उल्टी गति से जो घूमते हैं। राहु केतु को एक ही राशि में परिभ्रमण करने में प्रायः आमतौर पे 18 मंथ लग जाते हैं। 12 राशियों में ट्रांजिट करते हुए इनको 18 साल लग जाते हैं।
राहु की महादशा 18 ईयर्स की होती है। राहु के गोचर फल, राहु एक राशि पर 18 मंथ तक रहते हैं और राशि बदलने के 3 मंथ पूर्व ही अपना फल प्रकट करना आरंभ कर देते हैं। राहु का फल इस तरह से होता है, दूसरी राशि में जाने से पहले ही ये दूसरी राशि का इफेक्ट 3 मंथ पहले ही देना शुरू कर देते हैं। अब राहु के कुछ एलिमेंट्री जो एलिमेंट्स मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूँ। राहु का गोत्र है, राहु ब्रह्म ऋषि कश्यप की पत्नी दिति के उत्पन्न दैत्य खानदान के हैं। राहु ब्रह्म ऋषि कश्यप की पत्नी दिति के उत्पन्न दैत्य खानदान के हैं। इनका गोत्र कश्यप है। राहु जनित रोग है मिर्गी, इसे एपिलेप्टिक हो जाना, चिकन पॉक्स या ल्यूनेंसी पागलपन हो जाना, या स्ट्रोक का हो जाना, आई साइट इश्यूज का हो जाना, कोढ़ हो जाना, स्किन की बहुत सीवियर प्रॉब्लम का होना, बॉडी के अंदर एयर प्रेशर डिस्टर्ब हो जाना, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाना, सीवियर डिप्रेशन का होना, मेंटल अनस्टेबिलिटी का होना, बॉडी के अंदर किसी भी तरह का जो पेन हो, किसी भी तरह का पेन हो, शार्प पेन हो, डल पेन हो, वो राहु की वजह से है। बॉडी के अंदर किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन हो, वो राहु की वजह से है। लकवा हो जाना, और किसी भी तरह की, जब लोग कई बार कंप्लेन करते हैं कि हमको लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसे तमाम इश्यूज राहु की प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे वो इश्यूज राहु रिप्रेजेंट करते हैं। राहु की गणना पापी, शुभ एवं क्रूर ग्रहों में की जाती है। बहुत बलवान ग्रह हैं। राहु भी शनि की तरह जस्टिस करते हैं, लेकिन राहु का मेन रोल पिछले जन्मों के कर्मों को चुकता करना। राहु टॉरस लिब्रा लगन में इसे योग कारक मानते हैं। जब टॉरस लगन हो, लिब्रा लगन हो, इसे योग कारक मानते हैं। राहु अपने नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा में विशेष फल प्रदान करते हैं। राहु अपने नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा नक्षत्र में विशेष रूप से फल प्रदान करते हैं। अब बात करेंगे राहु की शत्रुता और मित्रता। मरकरी, वीनस, सैटर्न के साथ राहु की फ्रेंडशिप है। सन, मून, मार्स के साथ एनिमिटी है, दुश्मनी है। जुपिटर के साथ न्यूट्रल है, लेकिन व्हेनेवर जुपिटर राहु कंबाइन होते हैं, जुपिटर के फल को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। राहु की दृष्टि जहां पे बैठते हैं, 5th, 7th, 9th, 12th हाउस पर 100% दृष्टि होती है। जहां पे बैठते हैं, जहां से बैठते हैं वहां से 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस पे 100% दृष्टि होती है। यही एक प्लैनेट है जिसकी अपने घर से 12वें घर पे भी, अपने घर से 12वें घर में 100% दृष्टि है। 2nd और 10th हाउस पे 75% दृष्टि होती है राहु की। 2nd हाउस, 10th हाउस पे 75% दृष्टि होती है। राहु 3rd, 4th, 6th, 8th हाउस पे 50% दृष्टि देते हैं। जहां पे राहु बैठा होता है, जहां पर राहु बैठा होता है, वो अपने से 11th हाउस में कोई दृष्टि नहीं होती। आमतौर पे किसी भी ग्रह की 11th हाउस पे दृष्टि नहीं होती। राहु का वर्ण, अवस्था, प्रकृति, गुण। राहु का वर्ण नीच है, नीच अवस्था में है, ओल्ड, वृद्ध है, जाति मलेश है, स्वरूप मलिन है, बहुत ज़्यादा शार्प है लेकिन लेजी बहुत है, आकृति दीर्घ है, पद सर्प है, गुण तमोगुणी है, तत्व वायु तत्व है, स्वभाव तीक्ष्ण स्वभाव है, एरोगेंस बहुत ज़्यादा है, और धातु लेड है, सिक्का, वस्त्र वूलन है, अधिदेवता राक्षस है, डायरेक्शन है राहु की साउथ वेस्ट डायरेक्शन, स्थान है जंगल, माउंटेन, ये राहु का स्थान है। जेम है हेसोनेट गार्नेट, टाइम है
रात के 12 और 2 बजे का टाइम। जो तंत्र की दुनिया में रात के 12 और 2 का वक्त भूत भावन का टाइम है। तांत्रिक इस टाइम का पूरे दिन में इसी टाइम की इंतजार करते हैं। बिटवीन 12 एंड 2 दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। जो लोग तंत्र का ज्ञान लेते हैं और तंत्र शास्त्र के अंदर 12 से 2 बजे, रात्रि के 12 बजे से सुबह के 2 बजे का टाइम भूत भावन का टाइम है। ये राहु का काल है। इनकी रुचि है इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में और टेक्निकल फील्ड इनका है। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, एरोनॉटिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल फील्ड वो इनका फील्ड है। कंप्यूटर का जो फील्ड है इनका फील्ड है। नेटवर्क फील्ड है वो इनका फील्ड है। एजुकेशन में ये सर्प पकड़ने की कला, पुरातन काल में जो लोग सपेरे थे वो राहु की कला है। तंत्र राहु की कला है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक मास्टर्स राहु की कला है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग राहु की कला है। एडवांस टेक्नोलॉजी राहु की कला है। स्पेस टेक्नोलॉजी राहु की कला है। स्पेस राहु की जगह है। पूरा जो आसमान है, पूरा जो आसमान है, जो नीला आकाश है, वो राहु का क्षेत्र है। व्हीकल है टाइगर, डे है वेडनेसडे, प्रतिनिधि है सर्प, स्नेक। राहु की गवर्नेंस है फिजिकल स्ट्रेंथ। जो पहलवानी का काम है वो भी राहु का काम है। मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर बनने हो, मार्शल आर्टिस्ट जो बनते हैं, राहु का काम है। फिजिकल स्ट्रेंथ, पहलवानी, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, राहु का काम है। ब्रेवरी, बहादुरी, एरोगेंस, वो राहु का काम है। परफॉर्मिंग सिन, पाप का कोई काम कर्म, पाप कर्म, राहु का काम है। दुर्भाग्य राहु का क्षेत्र है। टेंशंस, अनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी, एनिमोसिटी, क्राइसिस, ट्रॉमा, एक्सीडेंट, ग्रीफ, डिस्ट्रक्टिवनेस। जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल वर्ल्ड है, रिसर्च डेवलपमेंट, मैथमेटिशियंस, कैसीनो, ब्रॉथल, ये राहु का क्षेत्र है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रॉनिक वर्क, इसको राहु गवर्न करते हैं। अर्थ की कोर, ये राहु का काम है। अर्थ की कोर राहु का क्षेत्र है और अर्थ के कोर की नॉलेज का होना राहु का काम है। अल्कोहल, शराब का काम राहु का काम है। हंटिंग राहु का काम है। सर्जरी, सर्जन राहु का क्षेत्र है। राहु सर्जरी को, सर्जिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल इंजीनियरिंग राहु का क्षेत्र है। सर्जरी, सर्जन राहु का काम है। शिप बनाना, बोट्स बनानी, लीड करना, फोटोग्राफी, इमेज राहु का काम है। फोटोग्राफिक इमेज राहु का काम है। कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन राहु का काम है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग राहु का काम है। राहु रिलेटेड जो प्रोफेशन है, प्रोफेशनल स्पाई का होना, राहु रिलेटेड जो प्रोफेशन है वो आपके समक्ष पेश करता हूँ। आप सुन के हैरान हो जाएंगे। एस्पिनाज, प्रोफेशनल स्पाई राहु के काम है। सर्जन का होना, सर्जन, आप कोई भी सर्जन है, आप राहु के प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग राहु का काम है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी, जैसे जो स्पाई प्लेन चलते हैं, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी राहु का काम है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, तांत्रिक, डिगिंग द ग्राउंड, माइनिंग का काम करते हो, ज़मीन से तेल निकालने का काम राहु का काम है। एरोस्पेस, हेड ऑफ मैथमेटिक्स, हेड मैथमेटिशियन यूनिवर्सिटी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर मैथमेटिक्स राहु का काम है। हेड ऑफ पॉलिटिकल साइंस राहु का काम है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक मास्टर, जो पॉलिटिकल एडवाइज़र होते हैं प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को, वो राहु का काम है। स्टॉक एंड शेयर मार्केट लीडर्स राहु का काम है। स्टॉक एंड शेयर मार्केट राहु इसको डील करते हैं, राहु इसको लीड करते हैं। गैम्बलिंग, कैसीनो, रिसर्च डेवलपमेंट, एड एजेंसी, एम्यूनिशन फैक्ट्री, ऑफ लाइसेंस, होलसेलर इन ऑफ लाइसेंस, रेडियो, टेलीविज़न,
ऐसा जो प्रोफेशन, रेडियो प्रोडक्शन, टेलीविज़न प्रोडक्शन, स्नेक चार्मर, ड्रग डीलर्स, माफिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, स्पोर्ट्स साइंस, रेसलिंग, कोई भी जैसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, राहु का काम है। मैंने इसलिए कहा था कि राहु कलयुग में प्रोमिनेंट है। 2 प्लैनेट हैं कलयुग में प्रोमिनेंसी जो लीड करते हैं। सैटर्न इज द किंग एंड राहु इज अ प्रिंस। इस तरह से है दोनों, वन बाय वन टेकिंग ओवर फ्रॉम ईच अदर। राहु एंड सैटर्न कलयुग में दोनों का स्थान सर्वोच्च है। राहु की जो डोनेशन है जो हम करते हैं, बार्ले है, सस्मी सीड्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, फिश है, स्वोर्ड है, नेवी गारमेंट्स हैं, हैसोनेट गार्नेट है, ब्लैक फ्लावर्स हैं, ये राहु की डोनेशन है। राहु की जो रिलेशनशिप हैं, हाँ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दुनियावी तौर पर, वो हैं आपके इन लॉज। आपके इन लॉज आपके राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लेडी हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, लेडी हैं, जेंट हैं, आपके इन लॉज जो रिलेशनशिप इन लॉज के हैं, आपके इन लॉज राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके दादा राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। और अपने राहु को ठीक करने के लिए इनके साथ, अपने ग्रैंडफादर के साथ रिलेशनशिप को ठीक रखें, अपने लॉज के साथ रिलेशनशिप को ठीक रखें। कई बार लोग इन लॉज को रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं तो राहु भी भ्रष्ट हो जाता है। ग्रैंडफादर से बातचीत करना बंद कर देते हैं, ग्रैंडफादर की सेवा नहीं करते, ग्रैंडफादर के साथ कम्युनिकेशन नहीं रखते, तो वो राहु आपका जन्म कुंडली के अंदर भ्रष्ट हो जाएगा। राहु को ठीक करने के लिए सर पर चोटी, कई बार लोगों ने पीछे बाल लंबे रखे होते हैं, वो राहु की चोटी कहते हैं। शिखा, राहु की जो लंबे बाल आजकल रखते हैं कई लोग, वो राहु को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। टॉयलेट क्लीनर को टाइम टू टाइम पैसे देना राहु को ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। रुद्राभिषेक करवाते रहें, राहु को ठीक रखने के लिए परम आवश्यक है। दुर्गा उपासना, दुर्गा सहस्त्र नाम, अर्गला स्तोत्र का जाप करना, दुर्गा कवच का जाप करना, दुर्गा उपासना करना, दुर्गा के 10 महाविद्याओं की उपासना करना, वो राहु की उपासना तो है। इसमें बहुत, इसे एंडलेस। सूर्य चंद्र को ग्रहण लगाने वाले हैं राहु। कलयुग में राहु और शनि का युग है। कलयुग राहु और शनि के बिना हो ही नहीं सकता, इनका कोई वजूद हो ही नहीं सकता। कलयुग में जो लीड करने वाले यही 2 ग्रह हैं, राहु और शनि। शनि सैटर्न, शनि किंग है, राहु प्रिंस है, दोनों डील करते हैं। इस युग में राहु की मैनेजमेंट है और राहु का इंफ्रास्ट्रक्चर है और शनि की है वेल्थ। राहु, जिस तरह से हम कहेंगे कि राहु की मैनेजमेंट है, राहु का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन शनि की है वेल्थ, ओन बाय सैटर्न। कलयुग इज ओन बाय सैटर्न, बट इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैनेजमेंट है, ये इस तरह से कहेंगे कि कंपनी के चेयरमैन तो हैं कलयुग के सैटर्न, शनि, वो तो चेयरमैन है, सीईओ हैं कंपनी के, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, राहु। राहु इस युग में पॉलिटिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, सीक्रेट सर्विस, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, सीक्रेट सर्विस एजेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीक्रेट सर्विस एजेंसी ना हो? सबसे ज़्यादा लोग अब किसी भी कंट्री का एक सीक्रेट सर्विस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना और सीक्रेट सर्विस एजेंसी का स्ट्रांग होना उनकी अपनी आइडेंटिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए परम रूप से आवश्यक है। रिसर्च और डेवलपमेंट को राहु रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को राहु रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज को राहु रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिकल ट्रीटी, माफिया, एक्सटॉर्शन, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, कोल माइनिंग, डीजल, पेट्रोल, सडन हैपनिंग, जिस पर आपका सारा असर पड़ता है। ज़ीरो को हीरो बना देना और हीरो को ज़ीरो बनाने की कला राहु के अंदर है। एरोगेंस, ईगो, स्टबन एटीट्यूड, स्पेस, अर्थ, पताल की मैनेजमेंट राहु की है। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू साइंस, कंप्यूटर लैंग्वेज, स्पेस, डिस्प्यूट, ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट, किसी कंट्री के अंदर राहु इसको रिप्रेजेंट करते हैं।